Good evening and welcome to this special broadcast right here on NDTV. As we all know, this is election season, elections 2022, the semi-final, and the big mother of all battles is the state of Uttar Pradesh. Now, every political dispensation, every political party, every political setup is trying to set its equations right. The political equations, the caste equations, the religious equations, the mathematical equations, who to get what seat equations, and also the alliance equations. While the Samajwadi Party says that it is rich with a lot of people coming in and aligning with it, the Bharatiya Janata Party is also boasting of its alliance partners. We are happy to introduce one such alliance partner of the Bharatiya Janata Party right here for a special conversation. We have Central Minister Anupriya Patel of the Apna Dal, which is, her party is actually in an alliance with the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. Anupriya ji, thank you very much for joining us on this broadcast. Anupriya ji has insisted that she will reply in Hindi. Ms. Patel, my first question to you is that you've seen that many people have defected to the Samajwadi Party. They are from the OBC community, and there seems to be a very strong and concerted effort from the Samajwadi Party and the opposition to get this OBC equation right. In the Samajwadi Party, perhaps cater to the non-Yadav OBCs as well. How do you look at this development, and do you think that this works against you or your alliance? देखिए, ऐसा है, मैं इस निर्णय को जहाँ तक ये जो दूसरे हर पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में जो नेताओं का आवागमन चलता है, एंट्री एग्जिट चलता है, उसके बारे में मेरा अपना ये मत है कि चुनाव के ठीक पहले जब इस किस्म के निर्णय लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम मतदाता के मन में ये संदेश जाता है कि ये पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ध्यान में रख के लिए गए हैं, क्योंकि सभी लोगों को चुनाव में जाना है और जाहिर तौर से जो एक बार सदन में रहा है, विधायक मंत्री के पद पे रहा है, तो इच्छा होती है कि दोबारा टिकट हम सिक्योर करें, दोबारा चुनाव लड़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस पार्टी में हम हैं, हमें टिकट मिलने की संभावनाएं कमज़ोर होती है तो हम दूसरे ऑप्शंस, दूसरे विकल्प तलाशते हैं। तो अगर चुनाव के कुछ समय पहले इस किस्म के निर्णय लिए जाते हैं तो उससे जनता के मन में एक अलग संदेश जाता है, लेकिन जब चुनाव के ठीक पहले हम ऐसे निर्णय लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस के मन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव जाता है। इसलिए वोट की दृष्टि से अगर डाइवर्जन की बात कोई करता है तो मैं इस पर बहुत हद तक सहमत नहीं हूं। All right, but Anupriya Patel ji, see, the thing is that it's not just people who left immediately ahead of the elections. Many alliance partners of the BJP, like Mr. O.P. Rajbhar of the Suheldev BSP, left much before the declaration of elections. Mr. Rajbhar right now says that the BJP is a use and throw party. How do you respond to this very strong charge from Mr. Rajbhar that the BJP, your principal alliance partner, is a use and throw alliance partner? देखिए, मैं इस संभावना से इनकार नहीं करती कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ कटु अनुभव जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा होगा, लेकिन साथ में मैं एक और बात जोड़ूंगी कि कभी भी 2 दल, 3 दल, 4 दल जब आपस में साथ में आते हैं तो दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करना पड़ता है। दोनों को साथ में चलने की भावना बराबर होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल अलायंस तभी चलता है जब दोनों या तीनों या चारों लोग जो सहयोगी होते हैं आपस में एक सहमति बनाते हैं और आवेश में आकर निर्णय नहीं लेते हैं। तो मुझे काफी हद तक लगता है कि निश्चित रूप से कटु अनुभव रहे होंगे और इसलिए वो गठबंधन को छोड़कर गए, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। गठबंधन के सहयोगी थे, साथ में रहते तो बेहतर होता, लेकिन अब गए हैं तो कोई ना कोई आरोप तो लगाएंगे ही, और अपने तरीके से उन्होंने आरोप लगाए भी हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अगर गठबंधन में रहते तो बेहतर होता। Oh, okay. So you're saying that had he stayed on in your alliance, it would have been very good. So let me ask another question now. Ms. Anupriya Patel, do you think that just like the BJP gave an olive branch to RLD, which was immediately rejected, he said, "Main chawanni nahi hu jo palat jaunga." Jayant Chaudhary said that. Do you think that Mr. O.P. Rajbhar will be welcome in the NDA in a post-poll scenario? Would you be willing to give that offer to him?
देखिए, मुझे लगता है जो बात मैंने पहले कही कि गठबंधन चलते हैं जब साथ में चलने वाले सहयोगियों में दोनों तरफ इच्छा होती है। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति चाहेगा दूसरा नहीं चाहेगा तो इसकी संभावनाएं हम इसको नकार सकते हैं, ऐसा संभव नहीं होगा। तो यदि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो साथ में राजभर जी को भी चाहना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ संभव होगा। और अपना कुनबा बड़ा करने का प्रयास तो हर कोई करता है। मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर आएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आने का निर्णय है तो भी कोई समस्या नहीं है। एनडीए का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं। आएंगे तो अच्छा है, आएंगे तो अच्छा है। That is a very, very interesting point that you are making. Do you think that your alliance is going to benefit if Mr. O.P. Rajbhar, the second of the alliance partners of the Samajwadi Party, if he joins the NDA alliance, it will be good for your alliance? देखिए, कोई भी नया सहयोगी जुड़ेगा हमारे साथ तो निश्चित रूप से ताकत तो गठबंधन की बढ़ती ही है। राजभर जी गए हैं तो निषाद जी आए हैं, निषाद जी अपनी ताकत लेकर आए हैं, तो हमारे गठबंधन का आकार बढ़ा है। लेकिन राजभर जी भी साथ होंगे तो ऐसा नहीं है। उनकी जगह कोई भी और नया सहयोगी आएगा तो अपनी कुछ ना कुछ ताकत लेकर आएगा और गठबंधन को मजबूत करेगा। ये किसी के बारे में भी उतनी इक्वली एप्लीकेबल है ये बात। I look at this as an olive branch, a second olive branch to the alliance partners of the Samajwadi Party. One is Jayant Chaudhary and the other is now Mr. O.P. Rajbhar. But we'll leave this conversation there because you very diplomatically tried to answer this. My next question, Ms. Anupriya Patel, is this very interesting seat and contest in Rampur, where Azam Khan's son is pitted against Haider Ali Khan, who's the son of Congress leader Nawab Qasim Ali. Now, Haider Ali is your candidate, a Muslim candidate, the first lone Muslim candidate of the NDA from your party. I want to understand, how did this agreement come about? मैं अपना दल के इतिहास के बारे में एक आपको जरूरी बात बताऊंगी। अपना दल जिस वक्त अपना दल के संस्थापक मेरे पूज्य पिताजी यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जीवित थे, हमारी पार्टी का सबसे पहला विधायक जो जीता था 2002 में प्रतापगढ़ की सदर सीट से, वो मुस्लिम ही था। उनका नाम हाजी मुन्ना था। अपना दल कभी भी अल्पसंख्यक समाज के लिए उसने अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। हमारी पार्टी के शुरुआती दौर से कई हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुस्लिम समाज से रहे हैं, इसलिए हमारे दरवाजे कभी अल्पसंख्यकों के लिए बंद नहीं है। और हमने इस प्रत्याशी को फील्ड किया है तो आप इनके क्रेडेंशियल्स देखिए, युवा है, उच्च शिक्षित है, एक बड़ा राजनीतिक घराना है, एक साफ सुथरी छवि है। और मुझे लगता है कि रामपुर की जनता के लिए जिस तरीके से इन्होंने अपने पुराने राजनीतिक विरासत के साथ वहां के क्षेत्र में काम किया है, तो यहाँ की जनता निश्चित रूप से एक युवा, उच्च शिक्षित और स्वच्छ छवि वाले चेहरे को अपनाएगी, स्वीकार करेगी और रामपुर में बदलाव होगा। You say Janta Swikar karegi, people will accept him. Now here is my question. See, you are in an alliance with a party which is the Bharatiya Janata Party. The perception about the Bharatiya Janata Party is that it is anti-Muslim. You have the chief minister of the state who says, कुछ ऐसे लोग हैं कि हम सिर काट के भी रख दें, they will never accept us. Do you think that your candidate can be successful while you are in an alliance with a party which has the perception of being anti-Muslim, Ms. Patel? देखिए, ऐसा है, अपना दल एक अलग राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है। दो दल साथ में आए हैं गठबंधन के तहत, लेकिन उनके अपने वैचारिक कमिटमेंट अलग अलग होते हैं। और बीजेपी क्या वैचारिक कमिटमेंट रखती है, उससे अपना दल की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी एक पिछड़े दबे कुचले समाज के लिए काम करती है। और मैं फिर कह रही हूँ कि अल्पसंख्यकों के लिए मेरी पार्टी कभी अछूती नहीं रही है, मेरी पार्टी के लिए वो अछूते नहीं रहे हैं और हमारे दरवाजे उनके लिए बंद नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि गढ़ने का काम करेगी, अपना दल अपनी छवि गढ़ने की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। Ms. Patel, that's a very, very important point that you're making. You're saying that Apna Dal, that is your party, does not consider Muslims as untouchables and that they have a glorious future in your party. So, should one consider politically, this is a very politically important statement that you're making. Should one consider this as an olive branch or an outreach to the Muslims
not by the BJP, but an alliance partner of the BJP, Apna Dal, by Miss Anupriya Patel. हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी के आइडियोलॉजी के समान कैसे हो सकती है? हम दो अलग दल हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से हाशिए पर पड़े हुए तबके के लिए अपने गठन के समय से, अपने स्थापना के समय से काम करती आई है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं और अल्पसंख्यकों में भी दबा कुचला वर्ग है। हम तो हमेशा कमजोरों के लिए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने वैचारिक कमिटमेंट हैं, वो अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को बढ़ाते हैं, हम अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को बढ़ाते हैं। हम साथ में आए हैं, विकास के मसले पर आए हैं, सामाजिक न्याय के सवालों पर आए हैं। इट्स अ पॉलिटिकल अलायंस। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की आइडेंटिटी को खत्म कर देगी, ऐसा कभी नहीं होता। Very, very important. I think this is a very important statement being made by Ms. Anupriya Patel, that one must not mistake or make the mistake of the BJP's agenda being the same as the agenda of the alliance partners. That de-hyphenation has been made very, very clear by Ms. Anupriya Patel. My next question, Ms. Patel, pertains to what really is the issue in Uttar Pradesh. Because right now the allegation against your alliance is that you are the incumbents, and in an attempt to save yourself or wriggle out of those uncomfortable questions around your government, you're choosing certain other issues. Obviously, these issues are being chosen by your greater member of your alliance, the Bharatiya Janata Party. What, according to you, Ms. Patel, are the issues this election for Uttar Pradesh? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार थी और विपक्ष कह रहा है कि असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मैं विपक्ष के जिन लोगों से जो ये आरोप लगा रहे हैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगी कि आपकी नजर में असली मुद्दा क्या है? क्या प्रदेश का विकास और उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करना असली मुद्दा नहीं है? 5 साल एक सरकार पर भरोसा किया उत्तर प्रदेश के मतदाता ने और उनको सरकार में आने का अवसर दिया, तो हमारे 5 साल में हमारा कुछ दायित्व बनता है। हमने जो विकास के काम किए, जो हमारी उपलब्धियां रही, यदि हम उनको गिना रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ से परे है कि ये असली मुद्दा कैसे नहीं है। विपक्ष की नजर में असली मुद्दा क्या है, ये उनको बताना चाहिए। No, the reason why I ask you this question, Ms. Patel, because the opposition, the Samajwadi Party, the RLD or the other players seem to suggest that this very concerted attempt to bring in religion, to bring in other dynamics or other characteristics into this election is an attempt to, digress or move away or wriggle out from a commentary or a report card on the performance of Yogi Adityanath in Uttar Pradesh. Now that's the main question that I want to ask you. Do you feel that the Hindu-Muslim rhetoric is designed to a purpose to avoid a conversation on development, on your performance? विकास के मसले पर स्पष्ट रूप से हम अपनी उपलब्धियों को निरंतर बता रहे हैं। हमने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को एक दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिला है। प्रदेश में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। प्रदेश में हम आयुष यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। प्रदेश में करोड़ों लोगों को हमने, जिनके सर पे छत नहीं थी, उनको पक्के मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं, गैस का सिलेंडर दिया है, बैंक का खाता दिया है, आयुष्मान भारत का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। ये सारे विकास के काम है। नए एक्सप्रेसवेज हम बना रहे हैं, मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, मेट्रो कितने शहरों में आई है। तो विकास के मसले पर कहां सरकार निरुत्तर है? हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या का जो आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी कि कोरोना महामारी के दौर में हमारे देश के सामने बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या आई है। लेकिन कोरोना की कल्पना क्या किसी ने की थी? और क्या कोरोना अकेला भारत में आया? कोविड पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। हमारे सामने बेरोजगारी का सवाल आया है और हम धीरे धीरे करके हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। आप जानते हैं नया बजट भी आने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस नए बजट के जरिए हम एक ऐसा, हमारे माननीय वित्त मंत्री एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि एक तरफ लोगों के हितों का संरक्षण भी हो, दूसरी तरफ जो सरकार का राजस्व है उसका विस्तार भी हो, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल सेक्टर्स हैं
जिसमें जो रोजगार परक है, चाहे फार्मा का हो, स्टील का हो, लॉजिस्टिक्स का हो, ऑटोमोबाइल्स का हो, ऐसी हम एक मन में विश्वास है कि सरकार रोजगार परक, विकास परक ऐसा कुछ एक खाका खींचने का काम करेगी। इस पैंडेमिक से आप डिनाई नहीं कर सकते कि हमने लड़ने का प्रयास किया है। एक अकल्पनीय परिस्थिति हमारे सामने आई है, उस अकल्पनीय परिस्थिति का मुकाबला करने का प्रयास भारत सरकार और तमाम राज्यों के सरकारों ने किया है। While you say that this was Ms. Patel, while you say that this was an unforeseen event, Corona pandemic, I think the question over here is the management that the government did in dealing with the crisis management. I think that has been put to question by the opposition. We have not forgotten the scenes that one saw in Uttar Pradesh during the second wave, or how Uttar Pradesh was dealing with the second wave. Anyway, let's move on, Ms. Patel. Last two questions I want to ask you. The second last question is on farmers. You see, Akhilesh Yadav and Jayant Chaudhary, who are extensively touring Western UP, are carrying a potli in their, like a small sack of rice in their pocket, and they say that they are taking an Anna Sankalp, a pledge by putting, food grains in their hand, that this election will be to restore the prestige and honor of the farmer. Do you think that the prestige and honor of the farmer has been lost under your government? And how would you respond to what is being said by Akhilesh and Jayant right now? देखिए, जनता के बीच में गए हैं, किसानों के बीच में गए हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ स्लोगन देना है, किसान भाइयों के लिए कुछ कहना है जिससे वो उनसे जुड़ सके। मेरा ये मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठीक है, कुछ समय तक समस्या थी, लेकिन जब एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, तो उससे फिर से वहां की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं और लोग 2012 से 2017 का दौर भी याद कर रहे हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक मेरा आकलन है, जहां तक मेरा अनुमान है, किसान उत्तर प्रदेश का हो या देश का हो, भारत सरकार ने जो तमाम फैसले किसान हित में लिए, तमाम योजनाओं को चलाकर, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, सॉइल हेल्थ कार्ड्स हो, या जो सिंचाई की योजनाएं तमाम सरकार में लाई, और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए जितना काम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जब रुझान आने प्रारंभ होंगे, तो आप देखेंगे कि एनडीए के पक्ष में एक बयार बह रही है और हम सकारात्मक परिणामों की ओर बढ़ रहे हैं। You're saying that the waiver of the repealing of the farm laws is going to benefit the BJP. Fair enough, that is your assessment. However, the opposition does not feel that way. My final question, Ms. Anupriya Patel, is actually going to be back, and I'm going to circle back to the caste equations. Ms. Patel, the thing is that the Akhilesh Yadav government and many members of the opposition are extremely confident about their performance because they feel that the formula that the BJP alliance cracked in 2014, 2017 and 2019 has been cracked by them in 2022. The fact that many of these caste calculations of tall representatives of various castes in Uttar Pradesh have moved to their fold. In fact, your own mother is not with you. She is contesting, and as a breakaway party and in an alliance with the Samajwadi Party. Do you feel that this understanding and assessment of the BJP and the NDA combined, that you will have this bumper consolidation of all the castes towards your alliance, may not be correct, and that there will be a split within the OBCs also and the other castes also? Does caste continue to be that important in UP politics? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी भी अन्य राज्य का चुनाव हो, हमारे अपने जो सोशल फैब्रिक है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है, और हर चुनाव में जातीय समीकरणों को साधना ही पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, और 100% वोट तो कभी भी किसी एक गठबंधन या एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता है। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, जिसको ज्यादा मिल जाएगा, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग आ जाएंगे, वो सरकार बना लेगा। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि 100% हमारे ही पक्ष में है, कुछ तो हमारे विरोधियों को भी मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से एनडीए का जो ये प्रयोग है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को तो पिछले 3 चुनाव में भी आपने देखा है, हमारे वोटर ने, हमारे मतदाता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको स्वीकार किया है, और इसलिए अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले हैं। और 2022 का हम चौथा चुनाव साथ में लड़ने के लिए जा रहे हैं।
मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए का जो ये गुलदस्ता हमने सजाया है, इसकी खुशबू पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंची है और फिर से हमें एक बार जनता का अपार विश्वास मिलेगा और एनडीए की एक जानदार और शानदार जीत होगी, एक बम्पर जीत होगी। Ms. Anupriya Patel, you know, I have to admire the fact that you're extremely frank about caste and the fact that people from a certain caste are not monolithic in nature. They are not going to vote en masse. And that realization, because this happened in the past, in 2014, 17 and 19, these caste combinations did become or did vote like a monolith, like one single block in favor of the BJP, and that's why the spectacular win. For your realization that that may not happen is very honest on your part. Thank you very much, Minister Anupriya Patel, for joining us on this broadcast. We stop for a short break at this moment. News and updates continue on the other side.